Good morning, students. This is Sanchit Kalra, your science teacher. Today, we are going to start our next chapter, chapter number 15 of your book, that is Some Natural Phenomena. So, like its name says, it deals with natural phenomena. So, let's try to figure out what natural phenomena is. So, anything that is occurring naturally, basically, like it's thunder, like it's rain, like it's earthquake, like it's lightning, like it's soil erosion, or anything that is occurring naturally is termed as natural phenomena. Whether it's destructive or not, that is another discussion. But natural phenomena is something that is occurring naturally. Like in the images, you can see volcanic eruption. In the images, you can see northern lights. In the images, you can see earthquake. In the images, you can see cyclones, tsunamis. All these things comes under natural phenomena. So natural phenomena is basically the things that are occurring in nature without the without the interference of humans, like humans, which humans cannot control. The things that human cannot control, uh, they can record, they can analyze before those phenomena are occurring. But those things that are occurring in nature and humans do not have much interference in that, those things are termed as natural phenomena. Whether they are destructive or not, that is another discussion. We'll discuss those things. So before going into all these things, let's try to understand or try to figure out what we are going to study in this chapter. So basically, we'll divide this chapter in four parts. In the first segment or first part of this chapter, we'll discuss about it in introduction. We'll discuss about charges and its types. We have also discussed about charges in the previous chapter as well, like in chemical effect of electric current. In this chapter as well, we'll discuss about charges and its types. Then after that, after discussion of charges and its types, we'll discuss about interaction of charges and the properties of charges. And after that, we'll discuss about the methods of charging a body. So basically, this is the chapter that will deals with static electricity. So we'll see methods of charging an object, methods of generating static energy in an object. Okay, so what is static energy, that will try to figure out in this chapter. Then after that, these all four things: introduction, charges and its types, interaction and properties of charges, and charging methods. Basically there are four methods: charging by friction or rubbing, then charging by conduction, charging by induction, and charging by polarization. All these four methods we'll discuss about in the charging methods. And this is the first segment or part A of this chapter. Then in second segment, we'll discuss about an instrument for detection of charges, that is electroscope. In electroscope, we'll discuss its principle, its working, its construction, its uses and everything. And this is the second segment. We'll discuss only about electroscope in second segment. In the third segment, we'll discuss about a static discharge, uh, lightning and lightning conductor. So the causes of lightning and all those things, how lightning occurs, why lightning occurs, and safety equipment that is installed in large buildings, big buildings, or why to protect those buildings, and why why lightning easily falls on tall buildings, and how to prevent that by installation of lightning conductor. We'll see that. And then in lightning conductor, we'll see the principle and working of lightning conductor as well. So this is the third segment, which constitutes static discharge, lightning, and lightning conductor. And after that, we'll discuss in the last segment of this chapter, that is part 4. We'll discuss about earthquake, the phenomena of earthquake. It's the reason why earthquake comes, and in that we'll see what is seismic zone, fault zone, and how what are the parts of or layers of earth, and how earthquake occurs, how can we measure earthquake, the Richter scale, and all those things. And this is all about this chapter. We'll talk this chapter, or we'll study this chapter basically in four segments. The first segment is today's segment, which will discuss about the introduction basically.
and charges with its types, then interaction and properties of charges and charging methods. Okay, in the second segment we'll discuss about electroscope. Third segment we'll discuss about static discharge, lightning and lightning conductor, and in the last segment we'll discuss about earthquake. So without wasting time, let's start today's session, that is part A. So coming to the introduction part, so like I have told you previously, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेचुरल फिनोमिना क्या है, सो दैट एज द डेफिनेशन सेज द नेचुरल फिनोमिना कैन बी डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग कैलामिटी और फिजिकल प्रोसेस, द थिंग दैट इज अकरिंग नेचुरली, the phenomena, the process that is occurring naturally is known as natural phenomena. Okay, so here are some types of natural phenomena, that is like examples you can say: thunder, weather, germination of seed, soil erosion, all these are natural phenomena. And as I have told you, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो destructive है या नहीं है, दैट इज अनदर डिस्कशन. सो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज आर वॉल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एंड लाइटनिंग. और उसके अंदर जो टू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज आर अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग, एंड दीज टू फिनोमिनाज विल डिस्कस अबाउट दीज टू फिनोमिनाज इन दिस चैप्टर ओनली. ओके, so this is all about introduction segment. Now coming to a charge thing. charge क्या होता है, जैसे हमने chemical effect of electric current वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो charge is basically what, हमने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चार्ज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिकली हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी. इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ charge. Electric current is basically the flow of charge. Electricity is basically the flow of electric current, and electric current is basically the flow of charge. तो चार्ज को अगर आपको डिफाइन करना हो तो हाउ विल यू डिफाइन चार्ज? सो चार्ज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड to refer electric charge. It is a fundamental property of mass, matter like mass. It is a physical property because of which matter experience a force in electromagnetic field. अब देखो इस चीज का मतलब क्या है. डेफिनेशन लिखी है कि जैसे हम मैटर के अंदर किसी बॉडी का मास को डिफाइन करते हैं, मैटर को हम क्या डिफाइन करते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास बेसिकली, है ना. मतलब किसी चीज का कोई मास भी है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम उसको मैटर बोलते हैं. मतलब मैटर होने के लिए किसी बॉडी के पास मास होना बहुत जरूरी है या उसका स्पेस को ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी है. सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? मास. सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना है तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज. ओके, अब मैटर एक्सपीरियंस करता है कोई फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैटर किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कैसे करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज कैसे हेल्प करता है या चार्ज की वजह से मैटर कैसे एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी फोर्स को. देखो हमारे पास एक सर्किट है, जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक चार्ज. हमारे पास कोई सर्किट है, आपने उसके अराउंड करंट लगा दिया, आपने सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी से आपने करंट को उसके अंदर से पास कराया, तो उसके अंदर उसके इर्द गिर्द उस एरिया में, जिस एरिया में करंट मूव कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कराया मूवमेंट ऑफ चार्जेस ने. आप समझ पा रहे हैं? आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन या डेवलप किस वजह से हुआ. चार्ज मूव किया नेगेटिव टर्मिनल से. सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल है. हमने एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताया था, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है तो उस एरिया के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वहां पर एक फील्ड मेंटेन हो गया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो चार्ज की वजह से एक फील्ड डेवलप हुआ, एक फोर्स डेवलप हुई, उसको वो फोर्स ने एक्सपीरियंस कराया इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर. जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और किसी बॉडी के ऊपर
इन दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। सपोज करो मेरे पास एक पेन है या मेरे पास एक कॉम है, कॉम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स दैट बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी। अब कोई बॉडी न्यूट्रल कैसे है वो तो पता लग गया आपको कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन जो दो टाइप्स हैं चार्जेस के वो कौन कौन से हैं? एक है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव चार्ज है व्हेन द मैटर हैज मोर प्रोटॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको बोल रहे हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखो, एक जो एटम होता है ना, एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम बोलते हैं कि मैटर है वो। मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। मतलब यूनिवर्स में लगभग लगभग इन जनरल हम बोले तो सब कुछ मैटर को हम मैटर कंसिडर करते हैं। ठीक है। मैटर को जब आप फर्दर डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक क्लासिफिकेशन आएगी जिसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है। एटम मतलब मैटर का छोटा पार्ट। एटम को जब आप फर्दर डिवाइड करते हो और तोड़ते हो तो वो तीन पार्ट्स में टूटता है। वो तीन पार्ट्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन वो होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। नाइन्थ क्लास में यू विल स्टडी अबाउट दिस इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर. You'll elaborately understand about the what is electron, protons and neutrons and their discovery and everything in class 9th. But for the basic understanding, let's try to figure out कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में होते कहाँ हैं। तो बेसिकली एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है। न्यूक्लियस हम इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमारा सोलर सिस्टम समझ लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन इज द सेंटर. Each and every planet is revolving around those 8 planets are revolving around this center, that is sun, है ना. Similarly in an atom the center is nucleus and electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit, जैसे हमारे planets revolve करते हैं around the sun. ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता लग गए कहां होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो आपको यह पता लग गया कि एक बॉडी है वो एटम से बनी हुई है, मतलब बेसिकली इट इज अ मैटर। मैटर को फर्दर डिवाइड किया एटम, एटम को फर्दर डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एटम के अंदर है कहां कहां, बेसिकली समझ में आ गया। अब देखो, इसका मतलब ये तो है ये कि हर एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन जिस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो बॉडी क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज। जिस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दैट बॉडी हैव नेगेटिव चार्ज। आई होप यू अंडरस्टूड कि चार्जेस का कंसेप्ट क्या है, एक बॉडी के ऊपर कैसे आप चार्ज बता सकते हो कि कौन सा चार्ज है। ठीक है। सो अब यहां एंड में देखो, इफ यू कैन रीड, दिस कंसेप्ट अरोज फ्रॉम द फैक्ट दैट when we rubbed a glass rod with silk, glass rod gained a positive charge while silk fabric gained a नेगेटिव चार्ज। ये कंसेप्ट कहां से आया? जब हमने ग्लास रोड को एक सिल्क के साथ, सिल्क क्लोथ के साथ रब किया तो ग्लास रोड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क फैब्रिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। मतलब ग्लास रोड के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, और सिल्क के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। Clear? I hope you understood what is charge, what are the types of charges, proton, electron, neutron, that is the structure of atom, and how a body have a positive charge and negative charge, and from where this concept came from. Okay, this is all about this slide. Now coming to our next slide,
the two types of charges. I have discussed about this slide in the previous slide as well, that which is written on this slide. So but basically this says that a neutral atom, basically this atom basically contain three part. Okay, one is electron, one is neutron, and one is proton. When the loss of electrons takes place, when the loss of electrons takes place, that is, the number of electrons are less than those than the number of counterpart protons. So the body, the atom is known as cation. The ion, it will form an ion. जब एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो आयन जिसमें कन्वर्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, तब जो आयन बनेगी वो कटायन होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तब जो आयन बनेगी वो आयन होगी अनायन। मतलब वो आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी दैट इज कटायन, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी दैट इज anion. We have discussed this in a previous chapter as well. Okay, so atom can contain charged particle called electron and protons, like I have told you in the previous slide. If two electron come, okay, this is basically we are discussing the properties of charges. Okay, when two positive centers come close to each other, you have studied this in class 6th as well, जब आपने मैग्नेट्स का चैप्टर पढ़ा था। आपने देखा था कि लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। एक बार मैग्नेट ले ली, उसका नॉर्थ साउथ पोल है, दूसरी बार मैग्नेट उठा ली, नॉर्थ साउथ पोल है। जब आप नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा, साउथ को अट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा, लेकिन जब आप नॉर्थ और साउथ को लेके आएंगे पास में, तो दे विल attract each other. Similarly, in the case of charges, when you bring two protons together, this proton plus proton together, they'll repel each other. When you bring two electrons near each other, they'll repel each other. But in case when you bring a proton and an electron near to each other, the two bodies will attract each other. Okay, so I hope you have understood the concept of attraction and repulsion. That is, these two are the properties of charges. So let's try to read this from here as well. Atom contain charged particle called electrons and protons. If two electrons come close together, they push each other apart. They repel each other. Like two electrons came in contact with each other, they'll repel each other. Two protons came in contact with each other, they'll repel each other. But when one proton and one electron come in contact with each other, the both bodies will attract each other. So if a proton and an electron come close together in the third scenario, they attract one another. The charge on a proton is positive, proton, like I've told you, and on an electron is negative. Okay, so the interaction between electric charges is known as electricity, and the forces between charge object is electric force. And which force acts between them? In case of electricity, the current electricity, will study about electrostatic forces. Okay, the forces acting between the charges is electrostatic forces. So this is a one marker question: what kind of forces are acting between the electric charges? So those forces are basically known as electrostatic forces. Okay, now coming to our next slide, how does charges build up? Okay, मैंने आपको बताया कॉम है, कॉम के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कॉम इज न्यूट्रल। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसको हम वेरियस मेथड से हम उस बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। तो हम कैसे ला सकते हैं चार्ज आता कैसे है किसी बॉडी के अंदर, तो उसको समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बॉडीज हैं, लगभग हम जैसे आप प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, पॉलीथीन ले लो, आप पेपर ले लो, आप कॉम ले लो, आप यूज करते हो पेंसिल ले लो, पेन ले लो, ये चीजें हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर बेसिकली न्यूट्रल इन नेचर। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट है, वो मैटर से बना है, मैटर एटम से बना है। एटम के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब वो बैलेंस्ड है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तब बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर आप उसको कुछ मेथड से, जैसे आप उसको रबिंग से, आप सपोज करो मैंने एक पेन उठाया, पेन को मैं रब कर रहा हूं, या जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि एक ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया।
जब हमने दोनों को रब किया तो इस केस में जब रबिंग हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है, जिसकी वजह से कोई बॉडी न्यूट्रल बनी हुई है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा कि कोई बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कटायन। किसी बॉडी के अंदर से किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं अनायन। Okay, so if an object loses electron, it is left with more protons, and when it is left with more proton, what kind of charge it have? It has positive charge. And if an object gains electron, it have overall net number of electron. It have overall number of electrons more. So if it has more number of electron, the net charge on that body is negative. किसी बॉडी के ऊपर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। द बिल्डअप ऑफ चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में भी बताया। न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज डेवलप होना, अपने सोर्स नहीं लगाया कोई, उसके ऊपर चार्ज डेवलप होना, और वो चार्ज जब डेवलप हुआ है वो आपको कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता रहेगा, मतलब वो चार्ज टेम्परेरीली वहां पर डेवलप हुआ है, वो चार्ज वहां पर परमानेंटली डेवलप नहीं हुआ है। उसको हम बोलेंगे, उस केस को हम बोलेंगे कि उस केस में वो बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो समझ में आ गया होगा, और चार्जेस को कैसे डेवलप किया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, हमें ये तो पता लग गया कि चार्ज, किसी बॉडी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है तो उसके ऊपर चार्ज को बिल्डअप करना पड़ेगा। चार्ज को बिल्डअप भी कर सकते हैं, हम देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये तो हमें सब कुछ पता लग गया, लेकिन हम चार्ज करेंगे कैसे? ठीक है, हम चार्ज करेंगे, चार्ज करने के कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1 इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, देन चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड्स आपने प्रीवियसली अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। इस बुक में भी आपको मिल जाएंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ये कंसेप्ट आप +1-2 में जाकर पढ़ेंगे फिजिक्स में, अगर आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं। बट मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू जरूर दूंगा कि जो 4th मेथड है वो क्या है। वो ये जो 4 चीजें हैं, ये जो 4 मेथड्स हैं, ये चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के मेथड्स हैं, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराने के मेथड्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, पढ़ते हैं कि करके कि क्या क्या मेथड्स है। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या करता है, कहता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि हमने एक सिल्क का क्लोथ लिया और ग्लास रोड के साथ हमने उसको रब कर लिया। सिमिलरली हम इस केस में, अगर आप मेरा कर्सर लोकेट कर सकते हैं, तो एक प्लास्टिक रोड ली हमने, अनचार्ज्ड प्लास्टिक रोड ली, और एक अनचार्ज्ड क्लोथ लिया। जब हमने दोनों को रब किया तो रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो क्लोथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ट्रांसफर हुआ किसका, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्जेस का। और चार्जेस का ट्रांसफर कैसे हुआ कि उसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, एक बॉडी के ऊपर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और ये हुआ किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हमने पढ़ा था हमारी इसी ईयर में जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर था उसमें, कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं
तो उन दोनों के बीच की जो इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी को मूव नहीं करने देती। अब प्लास्टिक के रॉड के ऊपर हम कंटिन्यूअसली रब कर रहे हैं एक अनचार्ज्ड क्लॉथ को, तो क्या होगा, अनचार्ज्ड क्लॉथ में से मतलब अनचार्ज क्लॉथ में से या अनचार्ज रोड में से नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी एक बॉडी। अब देखो इस केस में प्लास्टिक रोड ने नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और अनचार्ज्ड क्लॉथ ने नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जिस बॉडी ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस बॉडी ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन का प्रोसेस क्या है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन uncharged object like this रोड, प्लास्टिक रोड, वन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर, दूसरे के ऊपर लाइक दिस अनचार्ज क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इस रोड ने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसने ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। सम इलेक्ट्रॉन मूव टू द अदर ऑब्जेक्ट व्हेन रबिंग। हेयर एंड बलून उसके एग्जांपल हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में करके भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट। तो इस केस में क्या हुआ, जब हमने इसको रब किया तो इसके अंदर से नेट नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ कमिंग टू अनदर मेथड दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। देखो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, इसके कांटेक्ट में सपोज करो हम एक ग्लास रोड लेके आ रहे हैं। यहां हमने प्लास्टिक का केस करा है, हम ग्लास रोड का केस कर लेते हैं एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के ये न्यूट्रल बॉडी है। हम एक चार्ज्ड बॉडी उसके पास लेके आए, न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए जिसके ऊपर कोई चार्ज है। ठीक है, जब हम उसके पास लेकर आए और उसके कांटेक्ट में लेकर आए, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए, उस बॉडी के टच हुआ उस बॉडी के, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर उसका, तो वो जो उस बॉडी के ऊपर चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, और जो न्यूट्रल बॉडी थी वो चार्ज्ड बॉडी बन गई। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन बेसिकली क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं और उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो चार्ज किस बॉडी पे था, चार्ज्ड बॉडी पे था, जिसको हम उसके नजदीक लेके आए। आई होप आपको समझ में आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड मेथड दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर पढ़ा कि हमको एक बॉडी को कांटेक्ट में लेके आना है। जैसे हम नेगेटिवली चार्ज किसी बॉडी को कांटेक्ट में लेके आए एक न्यूट्रल बॉडी के, तो वही चार्ज डेवलप हुआ न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो चार्ज्ड बॉडी हम लेकर आए थे। जैसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आए तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी जो चार्ज डेवलप हुआ वो नेगेटिव चार्ज था। लेकिन इंडक्शन का मेथड क्या है, आप एक न्यूट्रल बॉडी लेकर रखी हुई है आपने, उसके पास आप एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आए, पास लेकर आए, टच नहीं किया, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा इंडक्शन के फिनोमेना में। जब आप उसको एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे एक चार्ज्ड बॉडी को, तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है बॉडी के ऊपर, उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और जो वो ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा वो जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को हटा लेंगे फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल इस फिगर से समझते हैं। ए और बी दो बॉडीज हैं, आप ए और बी दो बॉडी हैं, वो कांटेक्ट में है, न्यूट्रल है फर्स्ट केस में। आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी उसके पास लेके आए, तो ये जो बॉडी है ए, इसके एंड पर जो चार्ज डेवलप होगा वो इस बॉडी का ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ला रहे, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब आप इन दोनों बॉडीज को दूर करेंगे तो ये वाली बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि ये दोनों इकट्ठी हैं। अब आप इस बॉडी को दूर कर रहे हैं, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा पूरे सिस्टम में अपने आप को। ये वाला सिस्टम नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये अभी भी कांटेक्ट में है। जब आप इस नेगेटिव चार्ज को दूर की तरफ ले जाएंगे, यहां से दूर ले जाएंगे, और ये दोनों सिस्टम को हमने अब सेपरेट किया हुआ है, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा सिस्टम में, और ये सिस्टम भी चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन फिनोमेना के अंदर दो अनचार्ज्ड बॉडी हैं,
उनके कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ला रहे, नियर ला रहे हो आप एक चार्ज्ड बॉडी को। जो नियर बाय एंड होगा उसके ऊपर जो चार्ज बॉडी लेके आए हो उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। जब इन दोनों बॉडीज को सेपरेट करोगे तो जो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करके पूरे सिस्टम में फैला लेगा। अब चार्ज बॉडी को जब आप दूर करेंगे तो इसके ऊपर जो ए बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और पूरे सिस्टम में फैला लेगा। इस तरीके से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएगी। आई होप चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्लियर हो गया हो। Now coming to the last and important method, that is charging by polarization. हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर पढ़ा, हम कांटेक्ट में नहीं लेकर आ रहे बॉडी, मतलब नियर लेकर आ रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी को नहीं लेकर आ रहे जिसके ऊपर हमने चार्ज डेवलप करना है। सेम इज द केस विद पोलराइजेशन। उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने किया है कि हम बॉडी को टोटली चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं उसी चार्ज को। चार्जिंग बाय पॉलराइजेशन वो मेथड है जिसके अंदर हम एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में तो लेकर आते हैं, लेकिन वो अनचार्ज जो बॉडी है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। मतलब मेरे पास यहां नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको एक वॉल के कांटेक्ट में लेके गया, वॉल के पास टोटल न्यूट्रल है, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव एंड के अराउंड आ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दूसरे एंड पे आ जाएगा। मतलब बॉडी एट होल न्यूट्रल ही रहेगी, लेकिन एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉडी ऐसी ही रहेगी। पोलराइज कर दिया हमने एक बॉडी को, पोल्स में बांट दिया हमने एक बॉडी को, एक पोल एक साइड, एक पोल दूसरी साइड, एक पोल एक साइड, एक पोल दूसरी साइड का मतलब एक चार्ज एक साइड, दूसरा चार्ज दूसरी साइड। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं लाए, नजदीक लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पोल्स में बांट दिया एक ही बॉडी को, एक चार्ज नहीं रहा, दोनों चार्ज रहे। ठीक है, आई होप आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन ये तीन मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा और जिसमें हमने देखा कि चार्जेस किस तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ वो रिजाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप किया जा सकता है, मतलब चार्जेस को बिल्डअप कैसे किया जा सकता है बेसिकली। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी चार्जेस की कि कैसे वो रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कोई बॉडी तो वो एक आयन बनेगी जिसको कटायन बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो बनेगी अनायन। उसके बाद हमने चार्जिंग के कुछ मेथड्स पढ़े जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, उसको हम कई मेथड से किसी बॉडी के ऊपर डेवलप करा सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में। फिर वो मेथड्स हमने पढ़े, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड पोलराइजेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा एंड आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो विल डिस्कस दोज डाउट्स इन डाउट सेशन एज वेल। So that's all from my end. I hope you will study and that's all. Thank you.